अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर एसएसटीओ की जो जॉब्स आई हैं एसआरबी में उसके लिए मॉक पेपर कंडक्ट करें, क्योंकि हमने कुछ प्रिपरेशन की है तो उसको हम जो है ना चेक करना चाहते हैं। अब उसके लिए मैंने ये मॉक पेपर बनाया है। ये जो पास्ट पेपर हुआ था जिसमें हम जो है ना पास हुए थे और काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, टॉप किया था, तो उसके मुताबिक ही बनाया है। जितने क्वेश्चंस मैं रिकॉल कर पाया हूँ और जितने क्वेश्चंस मैंने दोस्तों से पूछे हैं तो बिल्कुल उसके मुताबिक है। आप अभी से जो है ना एक पेपर हो आपके पास और पेंसिल हो या पेन हो, तो आप अपने ऑप्शंस जो हैं, जो आप राइट ऑप्शन समझ रहे हैं, उसको जो है ना लिखते जाएं और जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ उसको भी आप देखते जाएं और फिर आप चेक करें कि आपका स्कोर कितना आया है और कहाँ कहाँ पे जो है ना इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप इसमें देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो एनालिटिकल भी होंगे, सिंपल भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। तो मैंने जो है ना उसी एक्चुअल टेस्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है ताकि तमाम स्टूडेंट्स को एक्चुअल एग्ज़ाम का पता चल जाए और वो उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। तो चलिए और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपको पता है कि उसमें 20 मार्क्स जो है ना आपके 25 मार्क्स इंग्लिश होंगे और आपके जो है 75 सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। लिखा क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसका एक पैसेज है। ओवर द पास्ट decade, Pakistan tax system has undergone a series of structural reforms intended to increase the country's revenue to GDP ratio. Despite automation and digitization efforts, tax compliance remains stubbornly low, primarily due to the narrow tax base and administrative efficiencies. Sindh Revenue Board, however, has been relatively successful at integrating technology to improve tax collection within the province through electronic filing, data analytics, and taxpayer facilitation. The SRB has increased transparency and reduced leakages. Yet challenges persist. Many service providers remain undocumented, and coordination between provincial and federal authorities are often strained. Economists argue that real reform requires behavioral change. Taxpayers must perceive taxation as a civic duty rather than coercion. Without building trust in institutions and ensuring visible benefits of public spending, compliance will always lag behind capacity. Thus, while automation is a necessary condition for reform, it is not a sufficient one. तो ये हमारा पैसेज है। अब इस पे क्वेश्चन है, the main idea of passage is that Pakistan tax reforms have fully eliminated corruption, reduced GDP, focused mainly on digital tools, but ignore behavioral factors, improved compliance through penalties. तो इसमें राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि डिजिटल टूल्स पे फोकस है लेकिन behavioral factors is still persisting. Second question, the word stubbornly as used in the passage means aggressively, persistently, temporarily and unexpectedly. तो यहाँ पर ये persistently है। यहाँ पे देखो stubbornly का मतलब है कि something that has been there for a long time, तो यहाँ पे वो persistently. Question number 3, according to the author, what differentiates SRB's performance from other institutions? Higher penalties, better technological integration, larger workforce, federal funding. तो यहाँ पर better technological integration है। Question number 4 है what does the authority mean by necessary, not sufficient? Automation is optional. Automation alone can not ensure success. Automation solves all problems and none of these. तो हमारा राइट ऑप्शन है कि ऑटोमेशन अलोन के नॉट इंश्योर सक्सेस। क्वेश्चन 5, द टोन ऑफ पैसेज इज सरकास्टिक, एनालिटिकल, पेसिमिस्टिक और परसुएसिव। तो डेफिनेटली एनालिटिकल है क्योंकि वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता रहा है। Which of the following would most strengthen other author's argument? Increasing tax rates, conducting awareness program on civic responsibility, reducing provincial autonomy, hiring more auditors. तो यहाँ पर civic responsibility पे काम किया जाए तो वही author के argument को strengthen कर रहा है। Question 7, choose the correct synonym for lucid. Vague, clear, complex, confused. तो lucid का मतलब होता है clear, और यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेग, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज ये तीनों सिमिलर हैं और क्लियर उनके अपोजिट है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्लियर ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ मिटिगेट, काम, इंटेंसिफाई, एलिविएट और रिलीव। तो इसका जो है ना मिटिगेट मतलब कम करना और जो है ना इसका एंटोनिम होगा इंटेंसिफाई करना। उसके अलावा चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर फॉर्म्स, neither of the candidates has submitted his form, neither candidates has submitted their form, none of these. The right option is neither of the candidates has submitted his form, option B.
अब देखो ऊपर वाले में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू है और थर्ड में भी जो है ना वो नीदर ऑफ तो नहीं लिखा हुआ, तो उसकी वजह से हमारा राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ शी डैश अर्लियर शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये कंडीशनल सेंटेंस है। लीव्स, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वुड लीव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हैड लेफ्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, रिप्लेस द अंडरलाइन विद द बेस्ट चॉइस। अब इसमें जो अंडरलाइन है वो यहाँ पे मिस हो गया, लेकिन वो है अक्यूज्ड फॉर। ही वॉज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग पब्लिक मनी, तो इसमें ऑप्शन हैं अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड इन, अक्यूज्ड टू, अक्यूज्ड बाय, राइट ऑप्शन है अक्यूज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, he said he was going to Karachi today, he said he is going to Karachi the next day, he said he was going to Karachi the next day, he said he will go to Karachi tomorrow। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में देखो he said he was going to Karachi today, उसमें टुडे ऑप्शन जो है, टुडे जो है वो एरर है। सेकंड ऑप्शन में आपका जो है ना रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ब जो है ना वो मिसमैच कर रहे हैं, एक जो है ना आपका पास्ट में और एक आपका जो है ना प्रेजेंट में, और लास्ट में भी वही है, एक पास्ट में और जो है ना एक आपका फ्यूचर में। Question 13, choose the correct idiom meaning to keep something secret, below the whistle, speak volumes, keep under wraps, under the radar, तो इसका ऑप्शन सी है जो है ना under the carpet या under the wraps मतलब छुपाना। fill in the blanks, he was found guilty dash fraud of to for or with, तो इसका ऑफ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। Question 15, choose the correct spelling, ये accommodation की स्पेलिंग है, तो सिंपल ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके अलावा क्वेश्चन 16, ही इज़ प्रोफिशेंट डैश फ्रेंच एंड जर्मन, 8 इन ऑन 4, तो ये इन है क्योंकि लैंग्वेज है, तो हम इसका ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर लेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू है क्योंकि एज वेल एज आ गया है, तो एज वेल एज जब भी आएगा तो आप जो है ना फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाओगे। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज़ लेट, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर लेट डैश, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज़ लेट। उसके अलावा क्वेश्चन आपका 18 है चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू परस्पिकेशियस, तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डिस्कर्निंग। डिस्कर्निंग का अगर आपको पता हो तो डिस्कर्निंग का मतलब है जो गुड जजमेंट शो करे या इनसाइट्स को शो करे। उसके बाद तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 19 है नो सूनर डैश द मीटिंग स्टार्टेड देन द फायर अलार्म वेंट ऑफ, हेज, हेड, डिड, वॉज, तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन 19 में ऑप्शन बी करेक्ट है, नो सूनर हेड। उसके अलावा क्वेश्चन जो है आपका 20, इरेडिकेट मीन्स क्रिएट, सपोर्ट, एलिमिनेट, डेवलप, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका जो है एलिमिनेट। इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, ईच ऑफ हैव नो एरर, तो इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है हैव, यानी कि ईच के साथ हैज़ लगना चाहिए। क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द टेंस बाय द नेक्स्ट वीक, आई विल हैव फिनिश द बुक, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। क्वेश्चन 23, ही हैज़ बीन रीडिंग डैश 2 hours फॉर सिंस 8 इन प्रीपोजिशन है, तो जब टाइम फ्रेम आ जाए तो उसमें हम जो है 2 4 देते हैं, और जब हम किसी पॉइंट इन टाइम को शो करें तो हम उसको सिंस देते हैं। क्वेश्चन 24, अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर डैश बीइंग डिलीवर्ड और इज़ वर हैव, जब लेक्चर्स हैं उसको हम नहीं देखेंगे, हम फोकस करेंगे सीरीज़ पे, तो सीरीज़ सिंगुलर वर्ब लेती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 25, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग और इज़ वर हैव, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, स्टूडेंट्स के साथ हम जो है ना वर्ब नहीं लगाएंगे, नंबर के साथ लगाएंगे, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इज़। यहाँ तक जो है हमारी इंग्लिश का सेक्शन पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 63, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये 5 नंबर हैं, उसमें जो बीच वाला है आपका 63 है, तो उसके पीछे भी 2 होंगे, उसके आगे भी 2 होंगे,
तो एक जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो इससे छोटा 61 हो जाएगा और उससे भी छोटा 59 हो जाएगा। तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन है वो बी है, 59। उसके बाद है 27 जो है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड rises by 20% then quantity demanded falls by 25%, what is the percentage change in total expenditure। अब इसको जो है ना सॉल्व करें आप, अगर देखें मान लो कि जो गुड की प्राइस है वो 10 है और जो है वो जो गुड की क्वांटिटी है वो भी 10 है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 है। अब गुड की जो है ना प्राइस 12 हो गई, 12 क्यों हो गई, 20% इंक्रीज़ आ गया और क्वांटिटी सेम रही मिसाल के तौर पे, तो ये हमारी 120 हो जाता। लेकिन गुड की प्राइस 12 हो गई है और प्राइस जो क्वांटिटी है 25 से डिक्रीज़ हुई है, 25 10 से जो है ना डिक्रीज़ करो तो 7.5 बचेगा और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल आपका जो है ना 90 आएगा। अब पहले 100 था और एंड में हमारा 90 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो नेट चेंज है 100 में से 90 तक पहुंच गए, नेट चेंज कितनी आ गई हमारी 10% आ गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपने जो है ना सोल्व करने हैं और इसमें आप अपना स्कोर भी चेक करते जाएं कि आपका पहला ऑप्शन जो आप सोच रहे हैं वो कौन सा है और जो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे जो है 2 ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सिटी ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। ट्रेन ए जो है वो ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 450 किलोमीटर, हाउ फार फ्रॉम ए विल मीट दे। अब यहाँ पे ए के हिसाब से बताना है कि ए से कितना दूर जो है ना वो जाके मिलेंगे, तो ए 60 से जा रही है। यहाँ पे सिंपल आप रेशो लगाओ, एक जो है ना दोनों का शेयर कितना है 450 किलोमीटर वो जो है ना उनको कवर करना है, लेकिन एक जो है वो 60 से जा रही है और दूसरी जो जा रही है वो 90 से, तो इनका रेशो निकालो। तो रेशो इनका आएगा 60/90। अगर आप रेशो निकालो 60/90, ये 0 0 में, इसकी टेबल 2 इसकी 3, तो इनका रेशो है 2:3। अब 2:3 को जो है ना आप वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 2/5 ये ए का रेशो है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 450, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, क्योंकि ये 5 की टेबल 1 टाइम, इस पर 9 टाइम जाएगी, 90 × 2 180 होता है। तो आपका जो है यहाँ पे 180 किलोमीटर फ्रॉम ए की साइड से, अगर बी की साइड से पूछता तो आपका दूसरा हो जाता, तो ये इसका राइट ऑप्शन सी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29, ये सिंपल आपका जो है ना अलजेब्रा है। अलजेब्रा में इसको आप वो करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको एक मिलेगा x-2, दूसरा मिलेगा x-3, ये दोनों जो है ना इनमें से आंसर आएगा 2,3, तो ये इसका ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल 70 स्पीक इंग्लिश, 45 स्पीक उर्दू, 20 स्पीक बोथ, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश। तो सिंपल है, 70 इंग्लिश हैं और 20 जो है वो बोथ हैं, तो आपसे ओनली इंग्लिश पूछ रहा है, तो आप जो है 70 में से 20 माइनस करो तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 31, वो है सम अमाउंट्स टू दिस वन इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। अब सिंपल इसमें आप जो है ना इंटरेस्ट रेट वाला फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, जो है ऑप्शन बी है। Question 30, the average age of 6 students is 18 years. A new student join and the average becomes 19 years. What is the new जो है ना students age। अब तो इसमें जो है 6 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें वो जो है 6 तो न्यू 1 ईयर सब में ऐड हो जाएगा, तो 6 तो ईयर उसके होंगे और 19 वो खुद जो है ना एक 7th भी उसकी जो है वो होगी, तो टोटल उसकी एज जो होगी वो 25 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 32-25। उसके अलावा क्वेश्चन 33, बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ग्रीन। तो सिंपल इन सबको प्लस करेंगे तो वो हमारे नीचे आ जाएगा, तो ये 4 और 5 9 और 3, तो नीचे हमारा 12 है, ऊपर नॉन ग्रीन यानी कि वो 9 है, तो इनका सिंपल रेशो आपका 3/4 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन 34, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, द नेट इफेक्ट इज। ये क्वेश्चन पहले भी आया था एग्जैक्टली टेस्ट में भी, तो 0%, 1+%, 1-%या -2%, राइट ऑप्शन इज -1%।
और ये आप जो है ना कमेंट में बताओ कि कैसे हुआ। क्वेश्चन 35, इफ़ 15 men can complete a task in 12 days, how many men are required to complete it in 9 days? तो ये रिवर्स जो है ना, यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शन है आपका सिंपल। तो इसमें जो ये 15 men कंप्लीट 12 डेज़ में, और वो जो है ना 9 से, तो सिंपल रेशो देखो वो भी जो है डिक्रीज़ हो रहा है आपका 25%, तो वो इंक्रीज़ होगा 25%, तो सिंपल तकरीबन आपका जो है ना ये 20 आ जाएगा। इसको आप इन्वर्स रेशो से कर सकते हैं। क्वेश्चन 36, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। अब पहले 2 है, फिर 16 हो गया, 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। आप देखो पहले उसने 4 ऐड किए, फिर 6 ऐड किए, फिर 8, फिर 10, तो अब 12 ऐड करेगा तो 42, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 37, इफ़ 12 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 days, हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स टेक? वंस अगेन वही आपका जो है ना इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप अगर सोल्व करो तो ये आपका तकरीबन जो है ना 5 होल 1/3 राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 38, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट? अब ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फार्मूला लगाना है यहाँ पे, और आपको जो है ना आंसर फाइंड करना है। तो ऑप्शन आर 2000, 2100, 2200 आर 2050। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2100, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A/B इज़ 3 एंड B/C इज़ 2, फाइंड द A/C। तो यहाँ पे देखो A/B मल्टीप्लाई अगर करो B/C, तो B में ख़त्म हो जाएगा, आपको मिलेगा A/C, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 2/3, तो हमारा राइट ऑप्शन है 6, यानी कि इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 25% अबव द कास्ट एंड गिव्स 10% डिस्काउंट, व्हाट इज इज प्रॉफिट? परसेंटेज वही जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले समझाया वो आप लगाएंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन 41, इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 71, व्हाट इज़ द मिडिल नंबर? तो अगर आप ये सम तीनों का 72 है, तो इसका मतलब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। तो अगर मिडिल पूछ रहा है तो हमें एवरेज फाइंड करनी होती है, तो मिडिल में हमें 24 ही आंसर है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन जो है 42, अ कार कवर्स द डिस्टेंस फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, देन 60 किलोमीटर एट द 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? अब इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए दोनों जो डिस्टेंस और स्पीड है उनको मल्टीप्लाई करो, और फिर लास्ट में जो है ना टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करो अपनी जो है टोटल कॉस्ट से, तो आपका जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो 42 का राइट ऑप्शन है वो 48 है, यानी कि बी। Question 43, the ratio of ages of A and B is 3:5. After 10 years, the ratio becomes 2:3. What is B's current age? तो देखो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है ये 3x है, ये 5x है, इनका ये करंट रेशो है, इनमें प्लस करो 10 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स उनका रेशो बन जाता है 2/3। अब ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई, इसमें से हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है और ये हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा। तो जो इसकी करंट एज है इनकी वो है हमारी 30, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। उसके अलावा क्वेश्चन जो है हमारा 44 है, इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक 6 आवर एंड द अदर एम्प्टी दैट इन द 9 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक टुगेदर? एक जो पाइप है वो 6 आवर में उसको फिल कर रहा है, दूसरा 9 आवर्स में ख़त्म कर रहा है, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? अब 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो इनके डिफरेंस से, तो आपको आंसर मिल जाएगा विच इज़ अच्छा, इसमें मैंने सारे ऑप्शंस 18 कर दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 18 है। तो आप ए करो, बी करो, सी करो, तीनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लॉजिकल रीजनिंग है कि इफ़ ऑल अकाउंटेंट्स आर ग्रेजुएट्स एंड सम ग्रेजुएट्स आर इकोनॉमिस्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? तो ऑल इकोनॉमिस्ट आर अकाउंटेंट्स, नो। ऑल अकाउंटेंट्स आर इकोनॉमिस्ट, नो। सम अकाउंटेंट्स में बी ए इकोनॉमिस्ट, हाँ ये इसमें जो है ना आप कह सकते हो, क्योंकि ऑल अकाउंटेंट्स आर ग्रेजुएट, सम ग्रेजुएट्स आर इकोनॉमिस्ट, तो ये आपकी जो है ना राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 46, स्टेटमेंट द सिटी गवर्नमेंट हैज़ बैन्ड प्राइवेट व्हीकल्स ऑन संडेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, व्हिच assumption is implicit? People always use private vehicles on Sunday. Reducing vehicle can reduce pollution. Pollution is not serious on weekdays. Public transport is inefficient. तो यहाँ पे ये है कि इनकी पॉलिसी इसलिए क्योंकि ये रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 47 है, सिटिंग अरेंजमेंट पे 5 फ्रेंड्स A B C D आर सिटिंग इन अ रो
और A इज़ लेफ्ट ऑफ B, B इज़ लेफ्ट ऑफ E और C इज़ राइट ऑफ D, E इज़ एट वन एंड, वो इज़ सिटिंग इन द मिडल। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो E जो है वो हमारी एंड पे आएगी, यानी कि अगर ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है तो यहाँ पे या तो E लेफ़्ट पे आएगी या राइट पे। लेकिन कंडीशन देखो जो है B इज़ द लेफ़्ट ऑफ E, अगर B लेफ़्ट है तो इसका मतलब है E हमारी हमेशा राइट पे हो जाएगी, क्योंकि एंड तो यही है ना, इसके जो है ना वो दूसरे पे तो नहीं हो सकते। तो E अगर यहाँ पे आ गई तो फिर आप देखो इनको फिर अरेंज करो कि जो है A इज़ द लेफ़्ट ऑफ द B और B इज़ द लेफ़्ट ऑफ E एंड द C इज़ द राइट ऑफ D। तो C अगर राइट ऑफ D है तो यहाँ पर जो है C आएगी, यहाँ पे D आएगी, यहाँ पे A, यहाँ पे B और ये आपका हो जाएगा और मिडिल में आपकी D आ जाती है, तो राइट ऑप्शन आपका D है। नेक्स्ट इज़ द पॉइंट आउट द ऑड वन आउट। यहाँ पे देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 48 एंड 49। अब इसमें सारों में देखो कि तकरीबन सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, लेकिन एक ही नंबर है 48 जो स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये इनका ऑड वन आउट है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 49 है पॉइंट आउट द ऑड वन आउट। तो सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, स्फीयर, इनमें देखो सारे के सारे ये तीनों ये 2D शेप्स हैं और जो स्फीयर है वो 3D शेप्स है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 पॉइंट ऑड वन आउट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 एंड 19। इसमें क्या है कि सारे के सारे आपको प्राइम नंबर मिलेंगे एक्सेप्ट 21, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अकाउंटिंग है, उसमें 51 क्वेश्चन। इफ़ कंपनीज करंट रेशो इज़ 3:1 एंड इट यूजेस कैश टू पे ऑफ अ करंट लाइबिलिटी, द करंट रेशो विल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, इंक्रीज दोबारा भी आ गया है, रिमेन द सेम। तो इसमें देखो यहाँ पे डेफिनेटली जो है ना इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ क्यों होगा, यानी कि ऑलरेडी जो है ना 3:1 है और इक्वल अमाउंट दोनों से जाएगा ना, करंट लाइबिलिटी से भी और करंट जो है ना अकाउंट्स से एसेट से भी। तो अगर इक्वल जा रहा है तो जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा और अब हमारा न्यूमरेटर कम जो है ना कम रेशो से कम होगा, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है ना हमारा करंट रेशो इंक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ रेंट, परचेज ऑफ स्टेशनरी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, सैलरी टू स्टाफ। तो ये आपका जो न्यू मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ये आपका जो है ना राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 53, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। Question 54, if depreciation is undercharged, the effect will be assets understated profit, understated assets, overstated profit, understated assets, overstated profit, overstated none of the above। तो इसमें देखो जब आपकी डेप्रिसिएशन कम बताई जाती है तो आपके एसेट तो ओवरस्टेट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। Question 52, which accounting principle require recognition of expenses when incurred, not when paid? तो prudence, accrual और consistency, realization, accrual basis of accounting होता है। 56, a company issues shares of 10 each at the 12, the extra 2 is called premium reserve, security premium, capital reserve, surplus reserve। तो security premium होता है। Question 57, which item is not included in the calculation of net profit? तो रेंट इनकम, ओनर्स ड्राइंग, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। तो इसमें जो कमीनर्स का ओनर्स की जो वो होती हैं ड्राइंग्स होती हैं वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। उसके अलावा 58, विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स डिस्क्राइब बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो है ना पेमेंट ऑफ व्हीकल तो वो नहीं है, एसेट हैं दोनों। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, हाँ ये सही है, क्योंकि कैश भी जा रही है और लोन भी, आपकी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 59, अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज़, अब ये सर्टेन ऑब्लिगेशन या पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट में अराइज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 60, द मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स all the revenues are recorded on accrual basis, all expenses are minimized, expenses are matched with related revenues are recognized only when cash received। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 61, द ट्रायल बैलेंस इज़ यूज टू वेरीफाई। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है लेजर अकाउंट्स की। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 62, इफ़ करंट रेशो इज़ 2:1, द करंट लाइबिलिटीज़ आर 40,000, द करंट एसेट्स विल बी। तो डेफिनेटली वो उसका डबल है, तो 80,000। ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन 63 द अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विथ, तो वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन 64 व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर स्टेटेड द इफेक्ट इज़, तो ये आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना उस पर असर करता है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट करती हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो है नेट प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड हो जाता है। उसके बाद जो है आपकी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फॉर, तो ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 66 द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इम्प्लाइज दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 67 वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज, तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करो, ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ, तो इससे जो है आपका ऑप्शन से इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट, और सेकंड है आपका जो है डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन द नेट प्रॉफिट। उसके अलावा आपका डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट, उसके बाद आपका इंक्रीज़ इन दी करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन द नेट प्रॉफिट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके अलावा विच आर द फॉलोइंग एरर्स इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस टोटल, तो इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल पोस्टिंग एंड कंपनसेटिंग एरर। इसमें जो है ना एरर ऑफ पार्शियल पोस्टिंग ये जो है ना ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें आपको सही सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन 71 द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 72 द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द सेट्रस पेरिबस, यानी कि हर चीज़ को आप जो है ना वो कांस्टेंट रखेंगे। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड मूव इन्वर्सली, ऑप्शन बी करेक्ट है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जनरली पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनडिफाइंड, तो ये नेगेटिव होता है। क्वेश्चन 74 विच आर द फॉलोइंग शिफ्ट्स द डिमांड कर्व फॉर कार्स टू द राइट, तो राइज इन कार प्राइसेस, राइज इन इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस, इंक्रीज़ इन कंज्यूमर इनकम, या फिर जो है इनकी टैक्स ऑन द कार मैन्युफैक्चरर्स, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। जब इन कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो शिफ्ट होगा। क्वेश्चन 75 परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज करेक्टराइज बाय फ्यू सेलर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, प्राइस टेकर्स, सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन 76 इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज़ बिलो एवरेज कॉस्ट विल, तो ये आपकी डिक्रीज़ होगी, एवरेज कॉस्ट आपकी डिक्रीज़ होगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 77 एग्रीगेट डिमांड इज़ द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन अ कंपनी एट अ गिवन टाइम, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये जो है आपकी प्राइस लेवल पे होती है। क्वेश्चन 78 विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, तो इसमें जो है आपके ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो इंक्लूडेड नहीं होते। क्वेश्चन 79 स्टैगफ्लेशन इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन एंड रिसेशन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 80 public goods are characterized by rivalry and excludability, non-rivalry and non-excludability, rivalry and non-excludability, non-rivalry and excludability, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। Question 81 the MPC marginal propensity to consume is 0.75, the multiplier is, तो इसका ये सिंपल होता है 1/1 माइनस MPC, जो आपका आंसर देगा 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। Question 82 which of the following is not a fiscal policy instrument, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, पब्लिक बारोइंग, तो फिस्कल पॉलिसी में जो है ना आपका इंटरेस्ट रेट नहीं है, मॉनिटरी पॉलिसी का होता है। उसके अलावा आपका ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर करेक्टराइज बाय अ सिंगल सेलर, अ फ्यू इंटरडिपेंडेंट सेलर्स, मैनी सेलर्स विद डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स, मैनी सेलर्स विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो ये आपका फ्यू सेलर्स होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। 84 अ मार्केट विद अ सिंगल बायर इज़ कॉल्ड, तो एक ही सिंगल बायर है तो वो आपका मोनोपोली होता है। उसके बाद 85 इन मार्केट कंपटीशन अ फर्म्स प्राइस इक्वल्स, तो एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और द टोटल रेवेन्यू, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आपका जो है ना मार्जिनल रेवेन्यू आता है। क्वेश्चन 86 द फ्लिप कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट्स, तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद बीच में दिखाता है रिलेशनशिप। 87 the opportunity cost of producing one more unit of a good is explicit money cost only, next best, alternative, foregone, always zero, the average fixed cost, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका
ए द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन 88 है अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट लीड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लॉस ऑफ फॉरेन रिजर्व, राइज इन एक्सचेंज रेट, एक्सपेंशनरी जो है मॉनिटरी पॉलिसी। तो इसका होता है लॉस ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 89 द फ्री राइडर प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स। तो ये पब्लिक गुड्स के साथ होता है। Question number 90 if the total cost is 500 at 10 units and the 600 at the 12 units, marginal cost per unit is। तो आप चेंज इन क्वांटिटी में देखोगे और चेंज इन टोटल कॉस्ट में देखोगे तो आपको जो है ना यहाँ पे आंसर मिल जाएगा विच इज़ 50 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट हमारा सेक्शन ई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट डज द इफ़ फंक्शन इन एक्सेल डू। तो ये इट परफॉर्म्स अ लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न्स वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर इफ़ फॉल्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 92 द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द यूजिंग मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज टू। तो ये कंबाइन करता है मेन डॉक्यूमेंट को विद डेटा सोर्स टू प्रोड्यूस पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा 93 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टाइल्स। तो ये अप्लाई करता है अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ फॉर्मेटिंग चॉइसेस टू द टेक्स्ट। 94 द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट इज टू। तो ये कंट्रोल करता है ओवरऑल लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ ऑल स्लाइड्स, स्लाइड मास्टर। 95 in Microsoft Word which feature is used to create a list of headings with their page numbers। तो header and footer, table of contents, captions और index। तो ये table of contents होता है, index कोई नहीं होता ऑप्शन। 96 in Excel the function average A1 to A10 will। तो ये आपको रिटर्न करेगा mean of all numbers, mean यानी कि average। क्वेश्चन 97 इन MS Word पोस्टिंग प्रेसिंग Ctrl+1 अप्लाइज। तो ये डबल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये आपको ना सिंगल लाइन स्पेसिंग दे देता है। क्वेश्चन आपका 98 है द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन इज PPT docx, PPTX .xls। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, PPTX। क्वेश्चन नंबर 99 है इन डेटाबेस द प्राइमरी की इज यूज टू इनक्रिप्ट डेटा, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, स्टोर न्यूमेरिक डेटा ओनली, स्टेब्लिश मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। क्वेश्चन 100 द लास्ट क्वेश्चन विच एक्सेल चार्ट टाइप इज बेस्ड फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट। तो ये लाइन चार्ट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें मैंने ना सिर्फ क्वेश्चंस बताएं लेकिन उसको आपको एक्सप्लेन भी किया है, और आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।